So, topic is trust. Trust, here we mean, in our mind comes charitable trust. So, regarding trust, charitable trust, what happens? Trust when created, then we have to decide whether it is private or charitable. Private means benefit to limited person, say within family. Who will be benefited? Within family. And charitable means public at large. No personal benefit. No personal and private personal benefit. Limited person, family members. But when we talk about charitable, then it comes to public at large. Okay. Now, under section 215, definition of charitable trust given. What is charity? Okay. So, what happens in short? Education, public, non-profit organizations, medical health services, feeding poor people. Okay, feeding poor people. In this way, number of things are there. Later on, they have added yoga. They have added yoga also. So, will fall under charitable. Okay? Charity not restricted to limited. It may be beyond. Okay? Sports also coming under charity. Now, here important is ultimately whatever you do. Say we are saying yoga, but you have opened a private gym. This is not charity. Sports, private sports coaching centers. It is not charity. Clear? So, what is charity? Object. And main point is not for profit. Whatever that will go to public at large. What to do so that terms and conditions are satisfied. So, public charitable 85% you have to spend for charity purpose. Now, in this connection, number of things are there. So, when it is private, when it is charitable, what are the sections, how to proceed, will cover one by one. Okay. Now, in this regard, write down section 11 to 13. Section 11 to 13. Section 11 to 13 covers about charitable trust. 11, 12 and 13. Number of subsections are there and total content is charitable trust. When we talk about 13, capital A, 13A, then it becomes political parties. Okay. So, section 11 to 13 is coming under trust, both private and charitable. Now, how to do, we'll cover one by one, section wise, and in the process we will learn. Okay. So, again, so same thing again, trust. Private, charitable. Private, charitable. Now, trust. If it is not charitable trust, it is private trust. If it is not charitable trust, it is private. If you can't satisfy charitable, but here important is that terms and conditions. One word is
it is a charitable trust but covered by violation. Covered by violation. When it is covered by violation, they will impose highest tax rate. Very risky. If it is violation, they will impose highest tax rates. ठीक है? Again. So trust, private. Here what happens? Beneficiary limited. Beneficiary limited. Here beneficiary at large. Beneficiary is public. Okay. Now, beneficiary is public. Further here important is registered. With income tax. Registered with income tax. Okay. Under section 80G. डोनेशन मालूम है? 80G मतलब रजिस्टर्ड ट्रस्ट तो दोनों ही रजिस्टर्ड है, प्राइवेट भी रजिस्टर्ड पब्लिक भी रजिस्टर्ड है, पैन कार्ड दोनों का है, लेकिन एक प्राइवेट है और एक पब्लिक है। तो पब्लिक चैरिटेबल होने से 80G का बेनिफिट मिलेगा अगर वो पब्लिक चैरिटेबल है। पब्लिक चैरिटेबल नहीं है तो 80G का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मीनिंग क्लियर है? ठीक है। अगेन, तो रजिस्टर्ड विथ इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 80G। now gross receipt. Gross receipt 15% रिटेन। आप 15% तक पैसा को रख सकते हो, नो टैक्सेशन। ठीक है। सपोज आपको 10 लाख रुपया मिला, मतलब 1,50,000, 1.5 लाख, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और 85% आपको स्पेंड करना है, स्पेंड फॉर चैरिटी। 85% आपको खर्च कर देना है। क्लियर? जो भी पैसा आएगा 15% आप रख लो और 85% खर्च करो। मीनिंग क्लियर है? ओके। अब देखना है ध्यान से, खर्च मतलब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू। अब यहां पर चैरिटेबल ट्रस्ट में थोड़ा समझने का चक्कर है। ठीक है। नाउ एक तो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओके, और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, capital expenditure is also utilization of fund. Utilization of treated as revenue expenditure.
इन विदिन 85%। इन विदिन, ऐसा सोचो आप एक मशीन परचेस किए, मेडिकल इक्विपमेंट, पॉसिबल? तो ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्लियर? अब क्या है, नाउ क्वेश्चन इज वेदर दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, सो कैपिटल एक्सपेंडिचर बट इट विल बी विद इन 85%। हम लोग बोलेंगे खर्च कर दिए, लेकिन एसेट तो आपके पास है। यस और नो? व्हाट इज इंटरेस्टिंग, डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड। डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड। जब आप कैपिटल कोई रेवेन्यू मान लिए, तब उस पर डेप्रिसिएशन कैसे मिलेगा? ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ऑडिट ऑल्सो, अकाउंट फाइनलाइजेशन ऑल्सो। ठीक है, आप अगर कोई एसेट परचेस करते हो 85% में, एसेट है उसको 85 में मान लिए, अब उस एसेट पर आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। क्लियर? तो यू कांट क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन दैट एसेट। और यहां पर क्या होता है, बहुत बार प्रैक्टिकल मिस्टेक हो जाता है। आप बोले हम लोग तो बिल्डिंग बना लिए, मशीन खरीद लिए, 85 में भी काउंट कर लिया और डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर लिए, गलत हो गया। सो डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड विच capital expenditure has been treated as revenue expenditure। ठीक है, आगे तो depreciation not allowed। क्लियर? अब ध्यान से, तो ग्रॉस रिसीट से 100, चलो 10 लाख, लेस रिटेन 15%, 1,50,000, बैलेंस हाउ मच, 8,50,000, लेस एक्चुअल एक्सपेंडिचर, एक्चुअल, ठीक है, सपोज 5 लाख, कितना? अनस्पेंट 3 लाख, टैक्स्ड एज नॉर्मल इंडिविजुअल रेट, नॉर्मल इंडिविजुअल रेट। ये समझ में आया? स्लैब वाइज, टैक्स्ड एज नॉर्मल इंडिविजुअल रेट। इसमें ध्यान रखना है, पुराना वाला रेट लग जाएगा, माने 115 बीएससी नहीं लगाइएगा। क्लियर? टैक्स्ड एज इंडिविजुअल रेट, वो आपको 2.5 लाख तक माफ होगा, और जो 5 लाख तक का जो माफ का जो है वो सब है इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए। ठीक है, इसमें वो सब कुछ नहीं मिलेगा। फिर से इसमें कोई 87A वगैरह ये सब कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो 2.5 लाख तक माफ होगा, बाकी पर टैक्स लगेगा, नॉर्मल टैक्स रेट, इंडिविजुअल टैक्स रेट। सरचार्ज इज कॉमन फॉर ऑल, सरचार्ज इज कॉमन फॉर ऑल, HEC कॉमन फॉर ऑल। ठीक है, अगेन अब है, अगर ये प्राइवेट ट्रस्ट है, अगर ये प्राइवेट ट्रस्ट है, सर अगर ज्यादा मतलब 85 से ज्यादा स्पेंड कर दिए तो क्वेश्चन है आप ज्यादा खर्च कर दिए, इनकम तो हुआ नहीं। नहीं सर, मतलब अब क्या है, फिर से 100 में खर्च आप मैक्सिमम 100 कर सकते हो, ऐसा भी है 10 और खर्च कर दिया। बोला किया कैसे? बोला पैसा देना बाकी है, पैसा देना
तो इसका मतलब नेक्स्ट ईयर जब आपका फिर से पैसा मिलेगा वहां से पेमेंट करेंगे, राइट? आप वहां से दे सकते हो। दैट विल बी अलाउड एज एक्सपेंसेस, दैट विल बी अलाउड एज, वो फिर से 85% में काउंट हो जाएगा। चैरिटेबल ट्रस्ट रूल्स रेगुलेशंस आर लिबरल। लास्ट ईयर का एक्सपेंडिचर पेड दिस ईयर, क्लेम दिस ईयर, ऐसा सिर्फ चैरिटेबल ट्रस्ट में होता है। पिछला साल का खर्चा इस बार दिए, अलाउड, ऐसा सिर्फ चैरिटेबल ट्रस्ट में होता है। ठीक है? आप बोले पैसा खर्च नहीं कर पाए, हम लोग कर देंगे। सपोज इस क्वेश्चन में 3,50,000 है, आप बोले हम लोग 6 महीना में खर्च कर देंगे, रिक्वेस्ट अलाउड कर देगा। बोलेगा खाली क्यों नहीं खर्च किए, आप बोले अभी पैसा मिला नहीं है, देगा। सेकंड, ईयर एंड में मिला, बोला खर्च कैसे करे, थोड़ा टाइम होना चाहिए, कर देंगे, परमिशन। ठीक है? सो उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आपको क्लेम करना होगा। क्लियर? अगेन, तो प्राइवेट अगर ट्रस्ट है, बेनिफिशियरी लिमिटेड, ठीक है, तब क्या करेंगे हम लोग यहां पर, बेनिफिशियरीज, नाउ इसको 2 डिवाइड में करेंगे हम लोग। कितना में डिवाइड करेंगे? 2 में। हैविंग टैक्सेबल इनकम, हैविंग टैक्सेबल इनकम, जो लोग बेनिफिशियरी है उसका इनकम टैक्सेबल है, एंड नॉट हैविंग टैक्सेबल इनकम, नॉट हैविंग, ठीक है, हैविंग टैक्सेबल इनकम, ठीक है, taxed at maximum marginal rate, taxed at maximum marginal rate, ठीक है। not having taxable income, taxed at individual rate, taxed at individual rate। मतलब अगर ट्रस्ट में सपोज 4 बेनिफिशियरी है, एक का भी इनकम टैक्सेबल है, तो ट्रस्ट का टैक्स रेट हो जाएगा मैक्सिमम मार्जिनल रेट। और अगर किसी का भी इनकम टैक्सेबल नहीं है बेनिफिशियरी, तब टैक्स डेट इंडिविजुअल रेट। तो एक का भी हो गया तो एक का भी हो गया तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट। तो ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, ठीक है, क्लियर। अगेन, तो ग्रॉस रिसीट 15% रिटेन, नो टैक्सेशन चैरिटेबल वाला में, और नॉन चैरिटेबल में, प्राइवेट में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें देखेंगे बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी का मतलब ट्रस्ट का जो इनकम होगा उसका बेनिफिट कौन लेगा, तो बेनिफिशियरी। तो बेनिफिशियरी किसी का भी इनकम अगर टैक्सेबल है तो ट्रस्ट मैक्सिमम मार्जिनल रेट, किसी का भी इनकम टैक्सेबल नहीं है तब टैक्स दैट नॉर्मल रेट, क्लियर। पब्लिक चैरिटेबल रजिस्ट्रेशन एज अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, बोलने से नहीं होगा, खाली लिखने से नहीं होगा, आपके पास इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट है कि आपका चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड है। अगर है अंडर सेक्शन 12AB, अंडर सेक्शन
और जब रजिस्टर्ड हो जाता है पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट तो आपको डोनेशन लेने का परमिशन मिल जाता है। वो है सेक्शन 80G। ठीक है, तो ये जो हम लोग लिखे ना रजिस्टर्ड 80G और अंडर सेक्शन 12AB, अंडर सेक्शन 12AB। ठीक है, नाउ और अगर ऐसा भी हो सकता है अंडर सेक्शन 12A, जैसे सेक्शन अभी नया रजिस्ट्रेशन है, पुराना रजिस्ट्रेशन है, पॉसिबल, नया और पुराना, पुराना है तो भी चलेगा, नया है तो भी चलेगा। क्लियर? नाउ व्हाट वी विल डू, विल कवर सेम थिंग बाय सेक्शन। व्हाट सेक्शन सेइंग, सेक्शन क्या बोलता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग और अच्छा से समझते हैं। राइट डाउन सेक्शन 11, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी held for charitable or religious purposes, religious purposes। So income from property held for charitable or religious purposes। सब ऐसा सोचो, आपके पास एक बिल्डिंग है, वो चैरिटेबल ट्रस्ट का बिल्डिंग है, पॉसिबल, वो बिल्डिंग को बहुत सा रूम है, उसको आप रेंट में दे देते हो। ठीक है, बहुत सा चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो लोग का अपना बिल्डिंग है, पब्लिक आता है उसको भाड़ा में दे देता है। ठीक है, तो हेल्ड फॉर मैंने पब्लिक मैंने चैरिटेबल ट्रस्ट प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम देयर, बट फॉर रिलीजियस पर्पजेस। इसमें क्या होता है, सपोज हिंदू लोग हैं, धर्मशाला नाम सुने हैं, रहने का भाड़ा में दे देता है, ये सब क्या है, सब चैरिटेबल है। ठीक है, अब यहां पर है, बहुत लोग इसका सेक्शन का मिसयूज कर सकता है, मिसयूज कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर फिर है सब्जेक्ट टू सेक्शन 60 to 63, this is related to clubbing, this is related to clubbing। ठीक है, क्लियर? ओके, इसके बाद क्या हुआ, बहुत जगह आप बिजनेस प्रोफेशन होता है ना सेक्शन, बिजनेस प्रोफेशन में भी मिसयूज होता है, बिजनेस प्रोफेशन में भी मिसयूज होता है। ठीक है, देन वन वर्ड इज कॉर्पस डोनेशन, कॉर्पस डोनेशन। ठीक है, नाउ व्हाट इज कॉर्पस डोनेशन? ट्रस्ट, donation income, donation income we have two category, donation income two category। now
One is without specific direction, and one is with specific direction. With specific direction. Now, okay, so without specific direction, this is section 12 and this is section 11(1)(d). 11(1)(d). ठीक है. Now, with specific direction, not taxable. Not taxable. That is not taken into account. Not taken into account. Okay. For calculation. Simply capital receipt. Simply capital receipt मतलब आप अपने फंड में ऐड कर लो. ओवर. कोई आया आपको 10 लाख रुपया दिया और बोला इससे 4 रूम बनवा लो. पॉसिबल? तो वो पैसा किस लिए? 4 रूम बनाने के लिए. स्पेसिफिक डायरेक्शन. ये आपके इनकम में काउंट नहीं होगा. ये आपके इनकम में काउंट मानो वो 15%, 18%, 85% कुछ नहीं करना. आएगा ही नहीं. लेकिन विदाउट स्पेसिफिक डायरेक्शन आपको पैसा दिया, बोला जो मन करो, ये आएगा. मीनिंग क्लियर? ओके. सो विदाउट स्पेसिफिक डायरेक्शन विल कम अंडर टैक्सेशन. मानो उसका आपको हिसाब देना है. और विथ स्पेसिफिक डायरेक्शन ये इनकम में काउंट नहीं होगा. डायरेक्ट अपने फंड में ऐड कर लो. उसको बोलते हैं कॉर्पस डोनेशन. माने आपके कैपिटल में डायरेक्ट ऐड हो गया. इसी का नाम है कॉर्पस डोनेशन. विदाउट स्पेसिफिक डायरेक्शन. विथ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉर्पस डोनेशन. और विदाउट स्पेसिफिक में क्या है? वो जो 15% आप रिटेन करते हो ना, वो आपके कैपिटल में जाके ऐड हो गया डायरेक्ट. और बाकी टैक्स के बाद अगर कुछ पैसा बच गया तो वो भी कैपिटल में ऐड होगा. आपका कैपिटल कैसे बढ़ता है? कॉर्पस डोनेशन से, 15% रिटेंशन से, और टैक्स के बाद अगर कोई पैसा बच जाए उससे. आई थिंक गॉट इट. नाउ ध्यान से, चैरिटेबल ट्रस्ट. चैरिटेबल ट्रस्ट, तो ट्रस्ट का जो ऑडिट होता है, ट्रस्ट का, तो while carrying out audit, if you don't have proper knowledge of income tax provisions, high risk is there. बहुत ज्यादा रिस्क है ये, क्योंकि ये अलग है एकदम टोटल. स्पेशली डेप्रिसिएशन. मान लो 5 साल पहले एसेट परचेस किए थे. बहुत बार होता है ना, मशीन है, डेप्रिसिएशन होना चाहिए. होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. कब होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए, मालूम होना चाहिए. ठीक है. तो हम लोग के इंडिया में क्या है, जो ऑडिट होता है जैसा चल रहा है उसे ही चला दिया. पॉसिबल? बट यू शुड नो वेदर डेप्रिसिएशन अलाउड और नॉट अलाउड. ठीक है. डोनेशन, सेक्शन 80G प्रोविजंस आर देयर. ठीक है. चलो फिर से वापस. तो विदाउट स्पेसिफिक डायरेक्शन जब पैसा आता है तब क्या है? विदाउट स्पेसिफिक वो पैसा आपको 15%, 85% में आएगा. और विथ स्पेसिफिक डायरेक्शन तब वो पैसा उसमें नहीं आएगा. डायरेक्ट आप अपने कॉर्पस में ऐड कर लो. क्लियर?
अब क्या है, ठीक है, आप जो डोनेशन दिए वो चैरिटेबल ट्रस्ट है ही नहीं, बेनिफिट मिलेगा, नहीं। डिसअलाउ हो जाएगा। और आप सपोज आप बिजनेस करते हो तो आप बिजनेस में डिडक्शन क्लेम करोगे हाँ। तो सब डिसअलाउड हो जाएगा, अब बिजनेस प्रोफेशन का सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। कैसे समझे? सो व्हेन यू आर डूइंग द थिंग्स नॉट एज पर प्रोविजंस ऑफ द लॉ, तब क्या हो गया, वो वायलेशन हो गया, नॉट एलिजिबल केस में आ गया, तब क्या होगा, फिर से एड बैक हो जाएगा। बिजनेस प्रोफेशन है तो बिजनेस प्रोफेशन में चला जाएगा, क्लबिंग है तो क्लबिंग में चला जाएगा। ठीक है, सो सेक्शन 11 मीनिंग क्लियर। चलिए फिर से 11(1) एप्लीकेशन ऑफ इनकम। एटलीस्ट 85%। ठीक है, तो व्हाट इज एटलीस्ट 85%? अगर आप 90% कर दिए कोई प्रॉब्लम है? अगर आप 85% खर्च कर दिए कम से कम तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्स। क्लियर? सो यू हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 85%। अगर आप 85% खर्च करते हो तो उसको चैरिटेबल ट्रस्ट में खर्च माना जाएगा। अब यहां पर प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन क्या है, आप खर्च किए 60%, आप किए नहीं। प्रैक्टिकल, इसको लिंक करेंगे हम लोग प्रैक्टिकल से। आपको रिटर्न जमा करना होगा 139(4) ए, 139(4)(a), रिटर्न बाय चैरिटेबल ट्रस्ट। रिटर्न बाय चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस। अगर 85% नहीं किया, अगर कर दिया तो रिटर्न जमा नहीं करना पड़ेगा। रिटर्न हमेशा जमा करना है, रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न हमेशा जमा करना है, कंपलसरी। अगर आपका चैरिटेबल ट्रस्ट है तो आपको रिटर्न जमा करना होगा। 1 रुपया इनकम है, लॉस है, प्रॉफिट है, जो भी है, रिटर्न आपको जमा करना पड़ेगा। रिटर्न इज कंपलसरी। तो 139(4)(a), तो रिटर्न बाय चैरिटेबल ट्रस्ट। अब क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, आप खर्च किए 40%, 60%, 85% नहीं किए और आप रिटर्न जमा कर दिए। गवर्नमेंट क्या बोलेगा, you are claiming the status of charitable trust, you have not spent 85%, it means you are not carrying charity, it means आपका चैरिटी का स्टेटस खत्म हो जाएगा, you fall under violation and pay tax on whole amount, pay tax on पूरा पर चार्ज करेगा। तो आप बोलोगे पूरा पर क्यों हुआ, पूरा पर क्यों होगा? 10 लाख में 15% तो हम रख सकते हैं, 8 लाख में हम 5 लाख खर्च भी किए हैं, अगर होगा भी तो 3.5 लाख पर होगा। बोलेगा नहीं, 10 लाख पर। बोला आप वायलेशन कर दिए तो आपको पूरा 10 लाख पर करना होगा। जब वायलेशन जैसे हुआ तो आप चैरिटेबल ट्रस्ट का वो 85-15 में आओगे ही नहीं। जब वायलेशन हुआ तो आपको खर्च का भी कुछ नहीं रहेगा, आपको जो मिला उस पर पूरा स्ट्रेट लगा देंगे। ये सब क्या है, केसेस। जैसे है ना, ऐसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। आपको नोटिस आ गया, पूरा ग्रॉस पर लगा दिया, 10 लाख पर 30% प्लस सरचार्ज प्लस मैक्सिमम मार्जिनल रेट, पता चला 42 पॉइंट कुछ सम परसेंटेज वो चार्ज कर दिया। बोला टैक्स दो। समझ गए? अब खतरा हो गया।
ठीक है. So while submitting return, be careful. While submitting return, be careful. क्या केयरफुल? केयरफुल में आपको बोलना होगा पैसा क्यों नहीं खर्च किए. खाली बोले इंडिविजुअल टैक्स रेट 2.5 लाख माफ, बाकी पर ले लो, कहानी खत्म. बोला ये कैसा चैरिटी चल रहा है. समझो केस को. इट इज चैरिटेबल. आप चैरिटी के लिए आपको बेनिफिट गया. 15% आप रिटेन किए, किस लिए अलाउ किया. आप तो चैरिटी कर नहीं रहे हो. आप खाली रजिस्ट्रेशन ले लिया, उसके बाद नो चैरिटी. गॉट इट. तो आप पर वो क्या करेगा, ग्रॉस पर चार्ज करेगा. बोला 15% तो किए नहीं, अब बाकी जो किए उस पर भी क्वेश्चन मार्क है, वेदर इट इज चैरिटी. समझ गए. वो सब डिसअलाउ कर देगा. अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शुरू हो गया. ठीक है. सो हाउ टू प्रोसीड. तो ये सब का क्या होता है, आपको रिप्लाई देना होगा. ओके. चलिए अगेन. तो 139(4)(a) यू हैव टू सबमिट रिटर्न. और 11(1) में क्या, एप्लीकेशन ऑफ इनकम 85% एटलीस्ट. अगेन राइट डाउन टू 11(2). accumulation of income. Five years. Form 10. Invested under section 11(5). मीनिंग. ओके. एक्युमुलेशन ऑफ इनकम. आप बोले कि आई हैव टू कंस्ट्रक्ट अ हॉस्पिटल. अगर हम लोग 85% खर्च कर देंगे, ठीक है, तो वी कांट कंस्ट्रक्ट हॉस्पिटल. हॉस्पिटल के लिए हम लोग को ह्यूज अमाउंट चाहिए. ओके. तो फॉर हॉस्पिटल वी नीड ह्यूज अमाउंट. Clear? For this huge amount, we have to accumulate. हम लोग को 5 साल, 6 साल, 10 साल का पैसा जमा करना होगा. तब पैसा जमा हो जाएगा, उस पैसा से हम लोग हॉस्पिटल बनाएंगे. लेकिन अगर पैसा खर्च कर देंगे तो हॉस्पिटल तो बनेगा नहीं. ठीक है. ओके. सो एक्युमुलेशन ऑफ इनकम. तब क्या है, आपको पहले से परमिशन लेना होगा कि हम लोग 85% खर्च नहीं करेगा, हम लोग पैसा को जमा करेगा. पैसा जमा करने के बाद हम लोग इन्वेस्ट, मैंने इसको पैसा करके एक हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करेंगे. ठीक है. तब क्या है, आपको परमिशन दे दिया और आप पैसा खर्च नहीं करो, अब जमा करो. But permission to be obtained in advance. Permission to be obtained in advance. आप एडवांस में परमिशन ले लो और पैसा जमा करो. अब यहां पर क्या है, पहले ओल्ड इट वॉज अलाउड अप टू 10 years. कितना, बाद में इसको रिड्यूस करके 5 year कर दिया. दैट मैक्सिमम एक्युमुलेशन अलाउड फॉर 5 years, नॉट मोर देन दैट. तो 5 साल तक आप एक्युमुलेट कर सकते हो जो भी पैसा खर्च हुआ, बट यू हैव टू स्पेंड इट. लेकिन अगर आप स्पेंड नहीं किए फिर चार्ज टू टैक्स कर देगा. कांट स्पेंड, एक्सप्लेन द कॉज. नाउ इट इज ऑन देम टू एक्सेप्ट और नॉट. ठीक है. अगेन, सो एक्युमुलेशन ऑफ इनकम 11(3). इनकम not so utilized in time allowed. Treated as income. Trust
to trust application not allowed. Trust to trust application not allowed. ठीक है, तो आपको पैसा दिया, परमिशन दिया, आप बोले ईयर एंड हो गया, आई कांट स्पेंड, आई विल स्पेंड इन नेक्स्ट 6 मंथ, आई विल स्पेंड विद इन नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर में भी आप खर्च नहीं किए, व्हाट दे विल डू, इनकम में चार्ज कर देगा. एकोमोलेशन आप इनकम किए, उसके बाद हॉस्पिटल बनाना है, आप हॉस्पिटल नहीं बनाए, क्या होगा, इनकम चार्ज टू टैक्स. ठीक है, सो नॉट सो यूटिलाइज्ड इन टाइम अलाउड, इट विल बी चार्ज टू टैक्स. तो आप क्या किए, आपका चैरिटेबल ट्रस्ट था, आप क्या किए, अपना चैरिटेबल ट्रस्ट का पैसा दूसरे चैरिटेबल ट्रस्ट को दे दिए और बोले पैसा यूज हो गया. बोला नहीं, दिस इज नॉट अलाउड. आपको खर्च करना है ना, तो आप पब्लिक एक्सपेंडिचर करो. आप दूसरे ट्रस्ट को दे दिए, बोले हो गया, नहीं, उसी तरह से वो भी करेगा, तो बोलेगा फिर पब्लिक चैरिटी कहां हुआ. तो ट्रस्ट टू ट्रस्ट नॉट अलाउड. पहले ये सब होता था, बोला पैसा देना है, खर्चा करना है, ए बी का ट्रस्ट को दे दिया, बी का प्रॉब्लम हुआ, ए का ट्रस्ट को दे दिया, पैसा अपने पास है, खर्चा कुछ नहीं करना है. Got it? So it should be actually spended, खर्च करना होगा. ठीक है, एक ट्रस्ट दूसरे ट्रस्ट को दे दिया, ये सब नहीं चलेगा. वो ट्रस्ट खर्च कर रहा है, आप भी खर्च करो. ठीक है ना. अगेन, so 11.3 11.3a, income not so utilized in time beyond control. बियॉन्ड कंट्रोल. अब यहां पर एक आएगा, पैसा आप खर्च नहीं कर पाए, बियॉन्ड कंट्रोल, आपके कंट्रोल के बाहर था, पॉसिबल नहीं था, इम्पॉसिबल था. इम्पॉसिबल कब कब होता है, पैसा मिला ही नहीं है, एंड ऑफ द ईयर मिला, और थर्ड है ऐसा सिचुएशन आ गया जो बियॉन्ड कंट्रोल, आप कुछ नहीं कर पाए. एग्जाम्पल में नाउअडेज बेस्ट इज कोरोना एग्जाम्पल. बोला खर्च करेंगे कैसे, हाउ, ओके, तो बियॉन्ड कंट्रोल. तो बियॉन्ड कंट्रोल में ये सब हो जाएगा. फिर बियॉन्ड कंट्रोल में कभी कभी फ्लड आ गया, टाइफून आ गया, अर्थक्वेक आ गया, आपको एक्सप्लेन करना होगा व्हाट इज बियॉन्ड कंट्रोल. इट इज ऑन देम एक्सेप्टेबल और नॉट एक्सेप्टेबल. ठीक है, तो आपने जो बोला इनकम मतलब आया ही नहीं मतलब, तो इसको इनकम में कैसे लें? इनकम, मान लो कोई कंपनी बोला ठीक है हम लोग 5 लाख का डोनेशन देंगे, एक्सेप्टेड, पेपर में लिख के भी दे दिया, पास भी हो गया, पैसा नहीं आया, तो आप इनकम ले लिए, इनकम में, लेकिन आपके पास तो इनकम आया नहीं, आप क्या करोगे. ठीक है, मीनिंग इज क्लियर, ओके. ठीक है, चलो. तो इनकम नॉट सो यूटिलाइज्ड इन टाइम बियॉन्ड कंट्रोल. 11.4 applies only when assessed income more than returned income.
असेस्ड इनकम मोर देन, इसको ध्यान से समझना है, रिटर्न्ड इनकम। सपोज 10 लाख पॉसिबल, रिटर्न में हम लोग अपना जो रिटर्न जमा किए, असेस्ड इनकम 14 लाख, मतलब हम लोग सबमिट किए, बोले हम लोग का ग्रॉस 10 लाख है, डिपार्टमेंट किया 14 लाख असेसमेंट में, ठीक है। एक्स्ट्रा कितना हुआ, 4 लाख टैक्स्ड, क्या होगा, टैक्स हो जाएगा। समझ में आया? असेस्ड इनकम, ये जो है कोई इसमें 15%, 85% सेट ऑफ, ये सब कुछ नहीं होगा, ठीक है, नो एडजस्टमेंट। स्ट्रेट टैक्स्ड, ठीक है, यहां पर कोई रूल्स रेगुलेशन लागू नहीं होगा, माने कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ, कुछ भी नहीं होगा। आई थिंक मीनिंग इज वेरी क्लियर। स्ट्रेट टैक्स्ड, रिटर्न इनकम, असेस्ड इनकम, क्लियर? अगेन, now here you see 11.2, what we said, accumulation of income for 5 years, form number 10 we have to apply, and the money accumulated, वो पैसा कहाँ रहेगा, so that should be invested under section 11.5. so what is under 11.5, कहाँ कहाँ हम लोग पैसा रख सकते हैं, तो इसमें ध्यान रखना है, गवर्नमेंट के पास नेशनलाइज्ड यही सब होगा, तो शेड्यूल्ड बैंक, प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हैं। अब देखो अंडर सेक्शन 11.5, अंडर सेक्शन 11.5, ओके, ट्रस्ट फंड, invested or deposited, क्या क्या होगा, ए गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट्स, बी पीओएसबी अकाउंट, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र। इंदिरा विकास पत्र तो आजकल सब बंद हो गया है, ठीक है, किसान विकास पत्र चल रहा है, ओके। सी डिपॉजिट, शेड्यूल्ड बैंक, शेड्यूल्ड बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी डी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ई यूनिट्स ऑफ यूटीआई, एफ डिबेंचर, in this interest guaranteed by central or state government,
डिबेंचर अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का है, ठीक है, सिक्योरिटीज सिक्योर्ड गारंटेड बाय, तब चलेगा। जी डिपॉजिट विथ पब्लिक सेक्टर कंपनी। एच immovable property, if you have invested no problem। तो वो तो पर्पज ही है अपना, दैट इज आवर पर्पस, ठीक है। आपको एक बार में परमिशन सिर्फ 5 साल का देगा। ऐसा हो सकता है आप हॉस्पिटल बनाए, आधा बना, फिर अप्लाई किए कि फिर से हमको 5 साल के लिए दिया जाए, हम लोग एक्यूमुलेट करके बाकी बनाएगा, हो सकता है, ठीक है। बट एट अ टाइम परमिशन विल बी मैक्सिमम 5 years। क्लियर। 11(1)(d already discussed। Contribution with a specific direction, इस पर कोई टैक्सेशन नहीं होता है। और 12 में कंट्रीब्यूशन विदाउट स्पेसिफिक डायरेक्शन, ये वाला टैक्सेबल होता है और इसमें 15% रिटेन करना होगा, 85% खर्च करना होगा, ठीक है। तो अब देखो सेक्शन 11, 12, 13 तीन है ना, तो 11(1), 11, 11(1), 11(2), 11(3), 11(3)(a), 11(4), 11(5) हो गया, 12 हो गया। 12 में अब एक्सटेंशन है, ठीक है। 12(a) कंडीशन एज टू रजिस्ट्रेशन। Condition as to registration of trust. Trust means here charitable trust. ठीक है। नाउ अब ध्यान से, आप सीधा चले गए, बोले मेरे ट्रस्ट को चैरिटेबल ट्रस्ट बना दो। आप सीधा गए, क्या बोले, मेरे ट्रस्ट को चैरिटेबल, बोला ऐसे नहीं होता है। प्राइवेट को चैरिटेबल बनाना, आप एक ट्रस्ट बनाए और गए बोले इसको चैरिटेबल बना दो, बोला ऐसा नहीं होता है। आपका रजिस्ट्रेशन के समय ही बोलना होगा कि यह चैरिटेबल ट्रस्ट है। क्या आपका जो डीड बनेगा ना, ट्रस्ट का डीड बनता है, डीड में ही रहेगा कि यह चैरिटेबल ट्रस्ट है। अच्छा, दो ही तरह का तो होता है, इधर प्राइवेट और चैरिटेबल। मतलब डीड में ही होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कन्वर्शन, वो सब नहीं। डीडी चैरिटेबल ट्रस्ट है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑब्जेक्ट इज चैरिटेबल ट्रस्ट। अब यहां पर ध्यान से, पहले आपको ट्रस्ट बनाना होगा, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करना होगा। ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन एक है सोसाइटी एक्ट और एक होता है कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है। और एक है आप सोसाइटी एक्ट में गए, वहां पे रजिस्ट्रेशन कराए, ठीक है। तो सोसाइटी एक्ट में गए, बोले मेरा ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए, ठीक है। इसमें क्या होगा, मेमोरेंडम आर्टिकल
मेमोरेंडम आर्टिकल, members consent, members consent, डिटेल्स, सब कुछ देने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा। इसमें तो किसी में भी जाओ, सब में है। सब कंपनीज एक्ट में तो जो करेगा वो तो चैरिटेबल के अलावा प्राइवेट तो नहीं कर सकता। फिर से ट्रस्ट बनाए, सेक्शन 8 का मतलब ही हो गया पब्लिक चैरिटेबल। अब बाकी कंपनी बना लो ना, तो प्राइवेट तो है ही वो। सेक्शन 8 का मतलब ही है पब्लिक चैरिटेबल, लेकिन आप वायलेशन करोगे तो बेनिफिट खत्म हो जाएगा। अभी ध्यान से, अभी तक इनकम टैक्स का एंट्री हुआ है इसमें नहीं। अब इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। ठीक है, इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन में आप जाओगे तो क्या बोलेगा, सबमिट रिटर्न कॉपी। क्या जमा करने बोलेगा, सबमिट। तो इनकम टैक्स का रिटर्न का कॉपी जमा करो। ओके, सेटिस्फाई देमसेल्व्स, उन लोग को लगेगा कि हाँ ठीक है सब, समझ गए। ग्रांट रजिस्ट्रेशन, ग्रांट रजिस्ट्रेशन और रिजेक्ट पॉसिबल। बिफोर रिजेक्ट अपॉर्चुनिटी ऑफर्ड, एक बार आपको चांस देगा, व्हाई योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, माने व्हाई योर एप्लीकेशन शुड नॉट बी रिजेक्टेड। आपको एक बार बोलेगा, आओ बोलो या रिप्लाई करो, व्हाई योर एप्लीकेशन शुड नॉट बी रिजेक्टेड। मीनिंग क्लियर है? ओके, ठीक है। तो सबमिट रिटर्न कॉपी, ठीक है। फिर सेटिस्फाई देमसेल्फ, वो लोग रिटर्न गो थ्रू करेगा, देखेगा, अगर ठीक लगा तो ग्रांट रजिस्ट्रेशन कर देगा, ठीक नहीं लगा रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट करेगा तो आपको एक चांस देगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। वो क्या बोलेगा, योर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन इज गोइंग टू बी कैंसल्ड। If you have to say anything in this regard, particular date, time, reply or answer. ठीक है, opportunity of being heard. ठीक है। अब यहां पर थोड़ा टेक्निकल्स फिर है। एक है सेक्शन 12A और एक है सेक्शन 12AB, AAAB। Now, this is up to 31/3/2021. This is from 1/4/2021. Registration procedure. Registration procedure. Oblique fresh registration, fresh registration और renewal और renewal। ठीक है, मीनिंग क्लियर है? तो पहले क्या था, 12AA
फिर 1421 से 12AB सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया और बोला पुराना जो भी है 12A में अब फ्रेश आगे का जो भी काम होगा वो 12AB से शुरू होगा. ठीक है, तो नाउ यू हैव टू मूव टू 12AB. हियर रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर सेम, सबमिट रिटर्न. आपको 3 साल का रिटर्न मांग सकता है, सबमिट करो, पूरा डिटेल फिलअप करो, पूरा डिटेल लेगा, क्वेश्चन आंसर होगा. दे विल सी द जेन्युइननेस ऑफ द चैरिटेबल ट्रस्ट. लास्ट 3 years what you have done, लास्ट 3 years what you have done. एक है एग्जिस्टिंग चैरिटेबल ट्रस्ट, तो दे विल गो फॉर रिन्यूअल, और एक है फ्रेश रजिस्ट्रेशन. क्लियर? नाउ व्हाट हैपेंड, अर्लियर चैरिटेबल ट्रस्ट वेर देयर and number of frauds were there. Okay, so what government did, they said all the charitable trusts, all A to Z, everyone has to apply afresh. नया अप्लाई करेगा, न्यू अप्लाई करेगा, और न्यू अप्लाई करके अगर एग्जिस्टिंग है तो रिन्यूअल के लिए अप्लाई करेगा. If they are satisfied, they will renew, otherwise will not renew. पहले क्या था मालूम है, they can grant registration of charitable trust, but they can't cancel the registration of charitable trust. पहले ऐसा सिस्टम था, चैरिटेबल ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन दे सकता है लेकिन कैंसिल नहीं कर सकता है. बाद में बोला कि नहीं, रजिस्ट्रेशन भी कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है. मतलब आपको फ्यूचर में चैरिटेबल ट्रस्ट का, एटीजी का, डोनेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा. ओवर. क्या समझे? यही है. आई थिंक वेरी क्लियर. ठीक है, अगेन सो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, फ्रेश रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल. ठीक है, अब ये सब में क्या है, सब अलग अलग केसेस है. ठीक है, नाउ पीरियड. पीरियड में क्या क्या है, रजिस्ट्रेशन, थ्री मंथ, 6 months, 1 month. Application received. एप्लीकेशन रिसीव किया, उसके 3 महीना के अंदर आपको दे देगा. 6 month if question of genuineness, अगर डाउट लग रहा है, 1 month application before Finance Act 2023 फाइनेंस एक्ट 2023. तो ये वाला तो अब टाइम खत्म हो चुका है. तो अभी के लिए क्या है, 3 महीना 6 महीना आप एप्लीकेशन किए, 3 महीना में आपको रजिस्ट्रेशन दे देगा. अगर उसको डाउट है जेन्युइननेस, तो फिर क्वेश्चन आंसर शुरू होगा.
तो तब केस टाइम कितना हो सकता है? 6 महीना। अब क्या है, मेन पॉइंट इज टाइम भी हो गया, रिजेक्ट भी नहीं किया, तब हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, डीम्ड रजिस्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? अभी नया वर्ड सब है। डीम्ड का मतलब फिर आप पर ये नहीं बोल सकता है कि आप डिफॉल्टर हो, ठीक है। सो डीम्ड रजिस्ट्रेशन, ठीक है। 3 months, 6 months, ओके। चलो, now fresh registration, फाइव years। कितना? पहले क्या हो रहा था, रिन्यूअल दे रहा था 3 साल तक का मैक्सिमम। अब फिर से एक बार पूरा चेक हो गया ना, पूरा का फ्रेश, अब फिर से कर दिया है 5 साल तक का आपको देगा। जो परमिशन है 5 साल तक का, तो जिसको 3 साल दिया हुआ है 3 होगा, अब नया जो है वो 5 साल तक का देगा। 5 साल के बाद फिर से रिन्यू करना होगा। A new section has been introduced under 12 AC from assessment year, ठीक है, नया शुरू किया है। टू 2025-26 with effect from 1/4/2025। merger of charitable trust, और institutions, ठीक है। मर्जर ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट्स और इंस्टीट्यूशंस, ये क्या है? चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है। मर्जर, 2 चैरिटेबल ट्रस्ट है, मिल गया, ठीक है, या 2 इंस्टीट्यूशन है, मिल गया। तो दिस शुरू हुआ है, मैंने ये सब परमिशन मिलेगा, ओके। तो इस पर क्वेश्चन आंसर बहुत कुछ है, दैट विल कंसिडर नेक्स्ट क्लास। इसके अंदर में आप लोग टास्क में 1, 2, चलो, यस, क्वेश्चन आंसर दोनों है। पहले आप लोग अपने से सॉल्व कीजिएगा, फिर आंसर देखना है। तो 1, 2 and 3, ठीक है। 3 क्वेश्चन कोशिश करना है, क्वेश्चन एंड आंसर। फिर उसके बाद आंसर देखिएगा। आप पहले देखना आपका क्या आंसर है, फिर आंसर देख लेना, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके।